Hey, ladies and gentlemen, a very, very warm welcome to you to episode number 31 of the Nishkar Sharma Show. Today, we have with us Aditi, who's just 20 years old, and she's recently crossed $93,000 in sales, almost $100,000 in sales in her e commerce, in her print on demand e commerce business. It's such a pleasure to have you, Aditi. A very, very warm welcome to you. Thank you, sir. Awesome. How are you doing? I'm doing good. How are you doing? I'm doing pretty good. It's such a pleasure to have you in the show. Since you've shared your result in the community, everyone's so inspired, everyone's so happy. So this really had to happen. So, before we get into the details and the nitty gritties, Aditi would really love to know, all of us, the audience would love to know more about you. So what's your background? Where do you come from? How did you start your online marketing journey? Please, the mic is yours. Okay, so I am 20 years old from Mumbai, and I'm currently pursuing BMS in marketing, which is Bachelor's in Management Studies in Marketing. So before coming into print on demand industry or e-commerce industry, I was doing blogging. So blogging I was doing for around for 6 months, but for blogging में there was I got no success. I was just doing blogging. I was Hmm. continuously pursuing blogging, but there was no success. Then suddenly saw your ad on YouTube, joined the Hmm. EFC challenge in June, Huh. and after the EFC challenge बहुत अच्छा लगा. Hmm. I did pretty well in EFC also, Hmm. but उसके बाद में to join DD and to start the actual print on demand uh, Hmm. funds चाहिए थे. Hmm. अराउंड 20K लाइक यू सेड कि जैसे Hmm. Hmm. आपके पास मिनिमम 20K मंथली इन द बिगिनिंग होनी चाहिए टू स्टार्ट विद प्रिंट ऑन डिमांड बिकॉज अ लॉट ऑफ द 80% of the Hmm. 20,000 is into Hmm. testing. True. Until you True. test, we won't find Hmm. which designs are working Yep. and how can we scale, because knowledge hai, it's Hmm. just about testing and being consistent with the testing. The Hmm. more you test, the more you find winners. Hmm. So वही fundamentals apply किए. Like you said, do not reinvent the loop. So I have exactly followed till date. I'm just exactly following what's been taught in DD. I haven't reinvented the loop, like the scaling, the ad copies, the $1 million pricing strategy, everything. So the everything is same. And अभी scale करने के लिए भी वही cap. I'm using cap, DAD, DAI, uh, lookalike audiences, Hmm. and CBOs. CBOs are doing pretty well for me when they are on the scaling stage. स्टार्टिंग में एबीओज डू वेल फॉर मी जब टेस्टिंग फेज है एबीओज में कैप अप्लाई करके. सो जब जून में जॉइन किया था, जून के बाद में आई टुक माय टाइम बिकॉज सिंस आई एम वेरी यंग आई हैड मेरे पास इतने फंड्स नहीं थे कि Hmm. 20,000 अ मंथ फॉर इन्वेस्टिंग. तो उसके लिए मतलब 20,000 अ मंथ फॉर मी इट वाज अ वेरी बिग डील टू अरेंज सिंस आई वाज जस्ट स्टडिंग. एंड इंटर्नशिप्स भी करती है तो भी अराउंड 5-6 टाइम थाउजेंड लग ही आते जाता. हैं हाथ True. में. तो उसके बाद फिर पेरेंट्स से फंड्स, बिकॉज आई वाज प्रीटी श्योर कि दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू, प्रिंट ऑन डिमांड ई कॉमर्स. एंड अभी तक भी मेरे स्टोर पे आई एम जस्ट सेलिंग टी शर्ट, Hmm. नॉट Beautiful. एनी अदर पीओडी आइटम. जैसे अभी लास्ट इंटरव्यू देखा था अर्चित के साथ में आपका. Hmm. सो ही सेड ही इज डूइंग वेल विथ मास्क ऑल्सो. सो आई एम जस्ट प्लानिंग टू लॉन्च मास्क ऑल्सो वेरी सून ऑन माई स्टोर. बट अभी तक That's बस awesome. टी शर्ट. Yes, अभी तक बस टी-शर्ट्स, the same things which I have been taught in DD. एंड जैसे कि स्टार्टिंग में ईएफसी जॉइन करने के बाद में जैसे कि पेरेंट्स ने फंड किए थे 50,000, एंड उससे ज़्यादा Hmm. मुझे उनसे मांगने भी नहीं थे बिकॉज Hmm. 50,000 वाज आल्सो बिग बिग अमाउंट फॉर मी. Yep. तो 20,000 डीडी में इन्वेस्ट किए फ्रॉम दैट Hmm. 50,000. तभी डीडी वाज 20,000. अभी आई हैव नो आइडिया कि मे बी प्राइस बढ़ गए होंगे डीडी के, बट इट इज Uh-huh. ऑल वर्थ डीडी में बिकॉज द Awesome. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई यू गेट if you if you get consistent and if you follow what has been taught in DD, the ROI is amazing. Like अभी currently जहाँ पे मुझे 20,000 was a big deal for me. फुल मंथ के लिए आई एम हिटिंग 20,000 इन नेट प्रॉफिट एवरी डे. Wow.
Yes, at least in March. Feb and Jan में कम था, but March में I scaled very fast. So उसके बाद में 50,000 से 20,000 चले गए डीडी में. 30,000 I put in Shopify fees, testing, getting designs made, and all of that. But starting में the designs weren't giving me result because I had no idea what kind of designs work in this industry. So I had to test. So as I kept testing, पता चले कि ऐसे ऐसे डिजाइन्स चल रहे हैं, फिर इम्प्रूविंग ऑन दोज डिजाइन्स, और अच्छे डिजाइन्स लाना. फिर उसके लिए आई लॉस्ट ऑल दैट 30,000 बिकॉज टेस्टिंग में चले गए. सो आई नीडेड फंड्स टू मूव अहेड विद पीओडी. ऑल आई न्यू वाज कि मुझे पीओडी करना है, ई-कॉम ही करना है. सो आई गिव अ होल्ड टू. जैसे कि डीडी जॉइन करके मुझे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए. सो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में से फर्स्ट मंथ तो फेसबुक एड अकाउंट बैंड और वही सब में चला गया था. एंड फिर उसके बाद में अनदर मंथ आई लॉस्ट द रिमेनिंग 30,000 बिकॉज विनर नहीं मिला. सो आई देयर weren't प्रॉफिट्स टू री इन्वेस्ट. तो फिर अभी बहुत सारे डीडी ने जैसे पोस्ट किया है, आप मतलब मेरा जो 90K का ये है स्क्रीनशॉट आपने पोस्ट किया. सो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ डीएम्स ऑन इंस्टाग्राम. सो आई यूजुअली ट्राई कि मोस्ट को रिप्लाई करूँ, बट देर आर सो मेनी डीएम्स आई जस्ट कैन नॉट रिप्लाई एवरीवन. सो जिनको जिनको हो पाता है आई रिप्लाई ऑन फेसबुक ऑल्सो एंड ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. So many people ask me कि ये Leeds Origin क्या है? Why is it Leeds Origin Aditi? So yeah, And your so username is Leeds Origin underscore Aditi, Leeds right? Origin Aditi. Yeah. Yes, it is. So the Leeds Origin start करने का, so Leeds Origin basically a digital marketing agency. So जैसे I lost 30,000 in starting में I lost 30,000 in testing and all. So तभी I was also attending your Q&A. So मेरे जैसा ही कोई था who was from college, 19-20 years old, in shortage of funds. So what you advise? He asked you the same question कि सर इस पे क्या कर सकते हैं हम? How can we arrange fund? So आपने एक बहुत अच्छी बात बोली तभी कि DD is not only about POD. डीडी में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है अपार्ट फ्रॉम पीओडी, लाइक फेसबुक एड्स चलाने हो गए, वेबसाइट क्रिएशन हो गई, ये सब. सो वेबसाइट क्रिएशन मतलब सिंस मुझे मार्केटिंग ही पसंद है, आई एम परसुइंग मार्केटिंग ऑल्सो. सो मुझे मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट था. सो आई थॉट जैसे आपने बोला like you run ad for yourself, you can run ad for other people also, you can help them True. scale their business. So पहले तो इंडिया में ट्राई किया, बट इंडिया में जैसे क्लाइंट्स में ये कर रही थी, पिच कर रही थी. सो पीपल आर नॉट रेडी टू स्पेंड मोर ऑन मार्केटिंग एंड द स्मॉल बिजनेसेस. सो जैसे अभी यूएस मार्केट से बहुत फेमिलियर हो गई हूँ बाय डूइंग पीओडी. अभी फिलहाल तो यूएसए में ही सेल कर रही हूँ. आई हैवंट मूव्ड अहेड फ्रॉम यूएसए. सो यूएसए मार्केट से बहुत फेमिलियर हो गई हूँ. लाइक उनसे बात करना, ईमेल सपोर्ट पे उनके क्वेरीज सॉल्व करना एंड ऑल ऑफ दैट. तो then I started pitching clients in USA. I started targeting small businesses through Google, मतलब जैसे डेटा निकालना उनका, and then I started pitching them on Instagram. So उसके बाद में मैंने एक particular niche choose की. Because there are lot of businesses, lot of different niche, and जब तक niche specific नहीं जा रही थी, I was not getting results there also. So उसके बाद में एक niche choose की, dermatology niche, उस पे काम किया. I started getting clients in dermatology niche. तो उधर से फिर थोड़े clients मिले एंड उनके लिए एड्स रन करती थी एंड उधर से फंड्स निकाले पीओडी के लिए. सो जैसे ही पीओडी के लिए फंड्स निकाले, आई अगेन स्टार्ट विद टेस्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट. सो विद इन अ मंथ जैसे उधर से रेवेन्यू आ रहा था, आई वाज इन्वेस्टिंग इन पीओडी. तो वहाँ से रेवेन्यू आ रहा था, पीओडी में इन्वेस्ट किया. जितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया उतने ज़्यादा विनर्स मिलना स्टार्ट हो गए. देन धीरे धीरे टेस्टिंग से स्केलिंग फेज पे जाना, एबीओ से सीबीओस पे जाना, लुक अलाइक ऑडियंस लॉन्च करना एंड ऑल ऑफ दैट. सो एक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स पे बहुत अच्छा होल्ड आ गया. सो उनके एड्स रन करते करते और स्टोर के लिए भी एड्स रन करते करते आई नो हाउ टू गेट रिजल्ट्स. सो ये एक बहुत बात अच्छी हो गई कि नाउ अभी इफ आई एम शॉर्ट ऑफ फंड ऑल्सो, आई हैव अनदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम माई मार्केटिंग एजेंसी. सो डीडी में एक ये बहुत अच्छा है कि यू नो हाउ टू गेट रिजल्ट्स.
Yep, that's beautiful. आप इतनी बड़ी बड़ी चीजें ऐसे बोल गए. मतलब this is actually so much, यार. You don't realize, but this is, I don't know if you realize this or not, but this is actually so much. In fact, this also aligns with my story. When I was in my college, second year of engineering, I was 18 and 19 years old. That's when I got to know about blogging. I started with blogging, and Mhm. like you said, blogging, I could not make blogging work as well. But मैंने उसमें बहुत टाइम दिया, 2-3 साल में लगा रहा, but could not make it work. और उस टाइम पे had no income source, so I started doing internships, और internships थोड़ा बहुत पैसा आ रहा था. ये जो आपने एजेंसी वाला काम किया, we did this, I did this agency work in 2016, which was like after getting graduated, feeling with something and then starting something. So yeah, Mhm. you yeah, this is pretty commendable, because आपने भी mention किया ना कि Q&A में मैंने ये चीज़ बोली कि देखो, डीडी से you're not just learning e-com, आप Facebook ads सीख रहे हो, स्टोर बनाना सीख रहे हो, डिजाइन रिसर्च सीख रहे हो, go implement this stuff and make money. In fact, there's another client, there's another digital दुकानदार VIP who's selling Facebook ad related services. A couple of them, a lot of them actually, who are selling Facebook ad related services and making money from there. So super duper proud of you. Now, why did you start with blogging? I mean, क्यों किया ब्लॉगिंग, क्यों स्टार्ट किया? You had some urge to make money on the internet, या ओवरऑल पैसे कमाने थे, या what was your why when you were starting with blogging? सो जैसे आप आपका भी गोल था कि आई डोंट मुझे खुद कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं फंसना था, दैट 9 to 5 सर्कल. देयर इज नो ग्रोथ, आई फील देयर इज नो ग्रोथ इन कॉर्पोरेट लाइफ एज मच एज व्हेन यू आर इन एंटरप्रेन्योरशिप. सो वही नहीं फंसना था. आई वांटेड फ्रीडम ऑफ टाइम, आई वांटेड फ्रीडम ऑफ मनी. जब चाहो, जहाँ से चाहो, जैसे चाहो काम कर सकती हूँ, एंड आई एम अर्निंग ऑलमोस्ट उतना ही या उससे भी ज़्यादा. सो आई डिडंट वांटेड टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट ऑल्सो. सो मेरे पेरेंट्स का ऐसा था ना कि स्टडीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. सो मतलब जैसे अभी कैट मतलब आई वाज़ I know. प्लानिंग टू परस्यू Mm-hmm. एमबीए. जैसे कि अभी सेकेंड ईयर में हूँ, तो अभी जो नवंबर में कैट आएगा, उसके लिए आई वाज़ गोइंग टू प्रिपेयर. सो मेरा एक था कि वो जो और प्रिपरेशंस अभी से स्टार्ट करनी थी, जैसे Mm-hmm. जैन 2021. सो जैन 2021 तक या जैन 2021 से पहले आई हैड अ टारगेट कि मुझे, अगर मैं पीओडी में खुद को प्रूव कर पा रही हूँ Mm-hmm. या फिर अपनी मार्केटिंग एजेंसी में खुद को प्रूव कर पा रही हूँ, सो आई कैन प्राउडली टेल माय पेरेंट्स कि मैं आई कैन ऑप्ट आउट फॉर कैट. मुझे कैट नहीं करना. आई एम डूइंग प्रीटी वेल हियर एंड आई कैन डू प्रीटी वेल अहेड इन द लाइफ विथ पीओडी ऑल्सो एंड विथ माई एजेंसी ऑल्सो. सो आई हैड टू गिव देम रीजंस फॉर ऑप्टिंग आउट फ्रॉम द फर्दर स्टडीज. तो एक टारगेट था कि जैन 2021 से पहले आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ विथ पीओडी और विथ माई मार्केटिंग एजेंसी. सो दोनों ही कर लिया. सो बोथ आर डूइंग प्रीटी वेल नाउ. सो दोनों ही कर इसीलिए लिया. तो पता नहीं इंटरेस्टिंग. था कि स्टार्ट कैसे करना है. पता नहीं था स्टार्ट कैसे करना है, इसलिए पहले ब्लॉगिंग. बट ब्लॉगिंग में दिक्कत क्या होती है कि देयर इज़ नो फिजिकल प्रोडक्ट टू सेल टू पीपल. Mm-hmm. So I was always interested in marketing, like marketing, advertising, always बहुत बहुत ज़्यादा पसंद था. तो I wanted to go on a specific product. फिर उसके बाद में ई-कॉम के बारे में थोड़ा नॉलेज गेन किया. ई-कॉम पे शिफ्ट हुई. फिर जैसे आपका ऐड देखा यूट्यूब पे, मूव टू ईएफसी. सो ईएफसी से पता चला कि प्रिंट ऑन डिमांड करके भी होता है. सो प्रिंट ऑन डिमांड में एक बहुत अच्छी चीज़ क्या थी कि जैसे ऑर्डर्स आएँगे वैसे द कंपनीज़ विल प्रिंट एंड शिप टू द कस्टमर्स. इन हैंड ज़्यादा सिर्फ़ आपको टेस्टिंग के लिए डालना है. जो प्रोडक्ट्स है उसको पहले से लेके नहीं रखना है एंड उसका स्टोरेज चार्ज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. तो द print on demand basically is the was a game changer for me. So I always knew कि print on demand करना है एंड फिर गैप लिया. ईएफसी के बाद भी आई टूक ऑलमोस्ट 5 मंथ्स टू अरेंज फंड्स एंड ऑल. एंड उसके बाद डीडी जॉइन किया व्हेन आई नो कि 50,000 पेरेंट्स को कन्विंस करके 50,000 मैंने, तो उसके लिए 5 Hmm. मंथ्स लगा. तो आफ्टर ईएफसी आई टूक 5 मंथ्स एंड देन आई जॉइन्ड डीडी. एंड आफ्टर जॉइनिंग डीडी वो फंड्स भी कम हो गए. सो आई लॉन्च्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बिकॉज़ मेरे में हिम्मत नहीं थी कि पेरेंट्स से और Hmm. 50,000 के Hmm. ऊपर भी माँगूँ. Right. तो आई वाज़ ऑन माय ओन.
सो फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चालू करके उधर से फंड्स निकाले एंड देन पीओडी को पुश किया. Beautiful. That's beautiful. Congratulations for all the great stuff that you're doing, Aditya. I'm super duper proud of you. Keep going the same way. You're doing pretty good. Now, while you were speaking, I was taking notes because you shared such beautiful things. You mentioned that you didn't want to reinvent the loop. ये बहुत अच्छी चीज़ है. हम्म, A lot of times हम्म, people make this mistake. वो start करते हैं, हम उनको बता रहे हैं करना क्या है, but then they would go and they would apply their own mind. हाँ, दिमाग चलाओ, but they change the strategies and change everything, which does not really get results. But yeah, you did not do that, which is awesome. You followed the process, you trusted the process, and now once you have money, once you have the results, once you have customers, you can try whatever the hell you want. You want to sell other products, go ahead. You want to do email marketing, go ahead. You want to build a brand, go ahead. And this is one thing that's common with Archit as well. You mentioned Archit's interview. Archit is also coming from a similar हम्म, background actually. Archit is almost your age too. He was running, he had a lot of digital marketing clients as well. He was running ads for other people. उसके बाद उसने सोचा that okay, why can't I do this हम्म, for myself? Then he restarted his POD business. उससे पहले join किया था, रोक दिया था, फिर POD restart किया, and then he killed it with his business as well. And this is exactly what he was sharing with me, that मैंने loop reinvent नहीं किया. I was pretty much doing what was being told, which is pretty good. So जब tell me something, when you were asking for $50,000 from your family, weren't you scared? डर नहीं लगा यार, what if I'm not able to give this money back to them? या वो हिम्मत वो होता है ना, डर लगता है यार, और पेरेंट्स ने कैसे दे दिए? टेल मी मोर अबाउट दैट. मतलब था, डर तो बहुत था स्टार्टिंग में. वो 50,000 लेने से पहले भी आई वाज वेरी स्कैर्ड. हम्म. बट एंड इट वाज अ टाइम कि पैंडेमिक था, जॉब्स वर लॉस्ट, एवरीथिंग वाज क्लोज. सो जो था सेविंग से निकाल देते एंड देन वो सेविंग से वापस पेरेंट्स से 50,000 ये करना वाज अ बिग डील फॉर मी. But then since I'm very close to my mom, so हम्म. she trusts me a lot. So हम्म. मतलब बचपन से लेके आज तक my mom never stopped me from doing anything. I've been always she always supported regarding what I want to do. So उन्हें बहुत trust था. So she was like I don't want कि uh, लाइफ में ऐसे कुछ भी हो तेरे लिए कि यू फील कि तब ये किया होता, तब पेरेंट्स ने सपोर्ट हम्म. किया होता तो आज कुछ स्टोरी अलग होती. आई डोंट या. वांट यू टू फील दैट आफ्टर सम पॉइंट इन लाइफ. सो ले ले 50,000 गए तो यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग. इट्स नॉट गोइंग टू गो इन वेस्ट. यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग एंड लर्निंग गोज ऑन. कभी ना कभी Hmm. लाइफ में उसको अप्लाई कर ले. Beautiful. That's awesome. Huge shout out to your mom, auntie as well. Pretty good. She has a pretty good mindset. You also shared that she's also an entrepreneur, right? I mean, she has her own business as Yes, well. Cool. business. That's pretty good. Okay. While you were sharing your background, you also mentioned that there was a point wherein you realized that मुझे POD ही करना है. Which also, now देखो, POD ही करना है, फिर वो you started your agency. You could have chosen to scale the agency, but you got back to POD. So why do you think कि आपको तब realize हुआ that POD is the thing that I want to be doing and not something else altogether? क्योंकि काफी लोग क्या होता है, POD काम नहीं कर रहा, चलो एजेंसी करते हैं, एजेंसी में रिजल्ट्स आ रहे हैं तो बाकी सब चीजें साइड करो, सिर्फ एक चीज करेंगे, एजेंसी एजेंसी क्योंकि पैसे आ रहे हैं. But what made you come back and resume the POD business again? सो पीओडी ऐसे है ना कि यू कैन स्केल इट टू अनलिमिटेड. मतलब द अपॉर्चुनिटीज आर अनलिमिटेड. जैसे अभी एजेंसी है, द क्लाइंट पेज यू पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फीस एंड उसके बाद में पर्टिकुलर अमाउंट. जैसे अभी आई एम करंटली चार्जिंग $2,000 फ्रॉम ईच क्लाइंट. सो बिकॉज यूएसए में उतना पे कर लेते हैं. Hmm. Hmm. तो वैसे कर लिया. फिर यहाँ पे पीओडी में क्या है कि यू आर नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रेवेन्यू. यू कैन स्केल एज मच एज यू वांट. यहाँ पे एजेंसी में क्या होता है, क्लाइंट ने पे किया, यू रन एड फॉर देम, यू डोंट मेक मोर देन दैट अमाउंट एक क्लाइंट से. बट पीओडी में यू कैन स्केल इट टू अनलिमिटेड till wherever you want. The only thing is you need to be consistent with testing and all of that, all of the Yeah. other things. Yeah, that makes sense.
Absolutely. POD is one business which can make you money even when you're sleeping. All over e-commerce ऐसा है. Exactly. हाँ, agency को भी अगर आप scale करते हो, team रख लेते हो, so every business can be automated. But yeah, for me personally as well, when I started Blistro videos, my first profitable venture. So back then, I had the option of scaling that, but then I didn't do it because मुझे ये पता था that if I scale this, life could become really tough. Handling clients and delivering the targets and meeting deadlines and all of that. I didn't want to answer anybody. मुझे था यार जॉब में जो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे भी वही कर रहा होता, मतलब जो जॉब में कर रहा होता यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ. What is the point? तभी I made this shift to e-com because here you don't have to, you can build a team, you can build systems, and your ads are gonna run even when you're sleeping. So that also gives you a lot of freedom. So I understand. So you also mentioned that there was a point when winners नहीं मिल रहे थे. uh, Mm-hmm. at that point of time when you were testing, काफी टेस्ट कर लिया, winners नहीं मिल रहे, what kept you going? you know क्योंकि काफी लोगों का ये सवाल होगा कि यार मैं भी कर रहा हूँ बट मुझे विनर्स नहीं मिल रहे हैं. सो व्हाट इज इट दैट केप्ट यू गोइंग, और आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे जो उस फेज में है जिनको भी विनर नहीं मिल रहा है? DD community is the answer to this question. Like people post so many posts daily ki sales mile, uh, crossed $500 in sales, crossed $1,000 in sales. So that kept me going कि इनको results मिल रहे. So there is एक time ऐसा था when I thought कि POD is very saturated in USA. But then जैसे इनके results देखती थी, they were on same page as I am right now. They are getting results. So definitely ऐसे कुछ ना कुछ होगा या फिर ऐसे कुछ ना कुछ designs मिलेंगे which I can scale. So that kept me going. The community results which have been posted in the DD community. So मुझे भी जैसे results मिलते थे तो I used to post, जैसे मैं खुद motivate होती थी वो results देख के. So I kept on posting my results also to motivate others. So that kept me going. Yeah, that's the power of a mastermind. Yeah, this is the reason we have this Facebook group so that people can get inspiration and motivation from each other. जब लोग देखते हैं यार कि हाँ अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, या वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, ये definitely that really is very very important. And तभी we say that the mastermind group is one of the most important parts of being in the program. So yeah, I absolutely agree with that. You were sharing a story about cat. So this I also align with that. When I was in my fourth year of engineering, मेरा भी ये था that I'll go for CAT, और I'll go for an MBA, get into a good college. तो एक तथागत नाम का इंस्टीट्यूट है, Connaught, here in Delhi, Connaught Place to be precise. So I joined an institute as well. उसकी फीस भी दिलवाई मैंने. But then उसके बाद I met someone who was making money by publishing books on Amazon Kindle. So एक बार मुझे वो इंसान मिल गया, फिर मैंने अपनी बुक पब्लिश करी. So और उस टाइम पे ना आई यूज्ड टू सेल ट्रैवल पैकेजेस. जैसे कुछ इंटर्नशिप के थ्रू ना लोग गोवा जा रहे हैं तो उसके बीच में आके पैकेजेस बेच दिए, हर पैकेज पे 1,000-2,000 एक्स्ट्रा रख लिया, एंड डूइंग दैट इन बल्क. So there was this point, I was almost about, my final examinations were coming, and I had 75,000 rupees cash with me in my pocket. And हम लोग डिनर पे गए थे तो डैड सेड, सो व्हाट इज अ प्लान? आई डोंट नो मैं क्या कर रहा था. मैंने शायद कोई मूवी देखी थी, मेरे को टशन मारना था, मैंने वो पैसे निकाले, मैंने ऐसे रखे. आई एम लाइक मैं नहीं कर रहा जॉब वॉब ऐसे करके. एंड आई ऑल्सो हैड 2 placements फ्रॉम इन्फोसिस, एक्सेंचर. बट देन they बोला कि क्या कर रहे हैं इसको अंदर है यहाँ पे, ये क्या है, एंड व्हाट आर यू डूइंग? एंड देन आई टोल्ड देम. सो वहाँ से पेरेंट्स को ट्रस्ट भी आ जाता है, लाइक यू सेड, नो योर मॉम ट्रस्ट्स यू. तो एक ट्रस्ट आ जाता है उनको कि हाँ यार ये कुछ ना कुछ कर ही लेगा, ही इज गोना हैंडल, कुछ ना कुछ हो जाएगा. ऑल्दो उसके बाद का बिजनेस स्टार्ट करने के 1-1.5 साल बाद जब उनको लग रहा था कुछ हो नहीं रहा है, ये 5-5 हज़ार रुपये महीना, हम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम लोग 3 से 5 हज़ार रुपये महीना कंपनी से विड्रॉ करते थे क्योंकि पैसे नहीं होते थे, और उतने में हम काम चला रहे हैं. तो घर वालों को लगता था यार ये तो बुरा हाल हो रहा है इसका बहुत ज़्यादा. सो देयर वाज अ पॉइंट वेर एन इवन माई पेरेंट्स सेड कि डू यू वांट गो फॉर अ जॉब, कुछ अप्रोच लगाएं, बिकॉज they were worried. मैंने कहा नहीं यार जॉब नहीं करूँगा मैं. एंड आफ्टर दैट things happened, Blister videos and coaching and e-com and all of that. And this also makes me think your parents must be super duper proud of you, right? Yes, super proud right now. So what kind of things do they say to you? अब जैसे सोचो जब आपने बताया होगा कि यार
दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, ये देखो, आई एम श्योर आपने बताया होगा मैं ये काम करती हूँ, दिस इज हाउ द मनी इज कमिंग इन, या इतना पैसा आ रहा है. सो उनके क्या रिएक्शंस थे व्हेन दे गॉट टू नो अबाउट योर एजेंसी विद पीओडी एवरीथिंग? उनका यही था, माय मॉम ऑलवेज न्यू कि मतलब इसको करने देते हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेगी, मतलब ऐसा। आई ऑलवेज, मुझे जो भी करना था बचपन से, डांस हो गया, स्विमिंग हो गई, सो ऑलवेज माय माय मॉम पुश्ड कि जो करना है कर, समवेयर और द अदर, बिकॉज तब तक जब तक आप ट्राई नहीं कर रहे हो पैशन फाइंड करना, तब तक आपको समझेगा नहीं कि आप किस में बेस्ट कर सकते हो। सो वही फिर एंड अभी जैसे रिजल्ट्स ला रही हूँ, एंड देन पेरेंट्स आर सुपर डुपर प्राउड, सो दे आर नॉट वरीड कि अभी वापस से लॉकडाउन हो गया है, मनी इज नॉट कमिंग इन, वी हैव टू टेक आउट आवर सेविंग्स एंड उससे ये करना है, सो दे आर वेरी चिल्ड राइट नाउ। सो दैट मेक्स मी वेरी प्राउड कि कि माय पेरेंट्स आर नॉट वरीड कि अगर और एक लॉकडाउन भी हो जाए अभी तो, so they are also very chilled and super proud right now. That's awesome. That's pretty good. So, talking about the technical things, so is there something that you've done differently? देखो प्रोग्राम में एक पूरा ब्लूप्रिंट है कि चलो डिज़ाइन ऐसे निकालने हैं, या Mhm. एड जैसे लॉन्च करनी है, स्केल ऐसे करना है, फुलफिल ऐसे करना है. सो हैव यू फॉलोड द एग्जैक्ट सेम सिस्टम, या आपने कुछ और भी ट्राई किया है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने लिए आपको लगता है बेस्ट काम करती है? वुड यू लाइक टू शेयर दैट विद द ऑडियंस, विद एवरीवन हु इज वाचिंग और लिसनिंग टू दिस? So, so starting में the main concern is Facebook bans. So Facebook bans में भी DD program में एक अलग से section है on how to deal with Facebook bans. So वो section पूरा try किया, फिर भी काम नहीं चल रहा था. I purchased a VPS and फिर नया credit card, नया domain, वो सब try किया, but still Facebook was banning. Even after requesting for review, वो सब हो रहा था. और जो फेसबुक अकाउंट, मतलब जो फेसबुक की एड अकाउंट की करेंसी, इट वाज इन द बिगिनिंग इट वाज यूएसडी. सो अभी मैनी पीपल आस्क मी कि हाउ एम आई डीलिंग विद फेसबुक एज इफ आई एम स्केलिंग सो फास्ट, फेसबुक के बैन्स नहीं हो रहे क्या? सो द एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आस्क. सो उसके लिए मैंने क्या किया, अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज बीन टॉट इन डीडी, कि मैंने और एक वापस से और एक नया वीपीएस खरीदा, डिफरेंट क्रेडिट कार्ड एंड डिफरेंट डोमेन. मैंने क्या किया वहाँ पे, आई केप्ट द करेंसी इन द एड अकाउंट, आई केप्ट इट इन यूएसडी, सॉरी इन आईएनआर. सो आईएनआर से स्टार्टिंग में आईएनआर से, जैसे आप बोलते हो कि स्टार्टिंग है व्हेन यू लॉन्च न्यू एड अकाउंट, स्टार्टिंग में परचेज कन्वर्जन्स वाले एड मत रन करो. टू वार्म अप द एड अकाउंट, स्टार्ट में थोड़े से पेज लाइक्स वाले लॉन्च करो टू वार्म अप द एड अकाउंट. वो किया एंड उसके बाद में फिर बैन्स हो रहे थे, बट आफ्टर रिक्वेस्टिंग फॉर रिव्यू, फेसबुक वाज इमीडिएटली विद इन 24 hours गिविंग बैक माय एड अकाउंट. सो इंडियन से मतलब, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि जैसे इंडिया, अगर आईएनआर में आप स्पेंड करो तो उस पे 18% जीएसटी लगता है, तो वो सेव करने के लिए दे गो फॉर यूएसडी एड अकाउंट्स. बट बट मुझे ट्राई करना था कि इंडियन एड अकाउंट्स में, इवन इफ आई एम पेइंग $18 एंड $18, सॉरी 18% इज ऑन द amount that you spend in on Yes. Facebook ads. It's that 18% is not on your revenue. True. The total that is on your amount spent for your advertising. So I was okay. In the beginning, it was very heavy for me to pay 18%, but I still stick with that INR ad account. और फिर उससे मैंने क्या किया उसके बाद में, जैसे ही मुझे एड्स अच्छे से रन हो रहे थे, आई गॉट माई सेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. दैट Okay. डोमेन आई गॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. सो जीएसटी में रजिस्टर किया, बीएम वेरीफाई किया, एंड फिर आई एम फेसिंग, अभी तक तो आई हैवंट फेस्ड एनी बैन्स ऑन Touch माय wood. एड अकाउंट. That's nice. That's pretty good. अभी Uh, तक uh, आफ्टर आपका, गेटिंग माय बीएम वेरीफाई. that's awesome. आपका ROAS कितना चलता है एवरेज, रिटर्न ऑन एड स्पेंड? What is the average every single day? अभी के लिए अगर एवरेज लेके चले तो इट्स अराउंड 6 to 7. That's beautiful. And what is a, so usually how much do you spend every single day in ads? Yeah, like at this अभी point of जैसे time? स्केलिंग Mm-hmm. 50-60 thousand.
दैट्स ब्यूटीफुल। तो आप अभी जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते, दैट्स ऑन योर नेम या वो किसी फैमिली मेम्बर के नाम पे है? अभी अभी तो मम्मी के ही नाम पे, बिकॉज़ अब हम्म। जैसे या। जैसे स्टार्टिंग में सिंस मेरी एज कम है, सो मेरा हम्म। जो सिबिल स्कोर है दैट इज़ नॉट वेरी गुड, हाँ, तो वो बिकॉज़ लिमिट नहीं मिलता है बैंक में उससे फिर। फंड्स नहीं, तो यप। लिमिट नहीं मिलता है, और क्रेडिट कार्ड भी बैंक इश्यू नहीं कर रही है मेरे नाम पे। सो प्रॉब्लम क्या हुई कि स्टार्टिंग में सभी मम्मी के नाम पे ही किया मैंने। सो मम्मी का अकाउंट यूज़ किया, मम्मी का क्रेडिट कार्ड, एंड फिर उससे ही स्केल कर रही थी। तो ब्यूटीफुल। इससे इससे क्या हुआ कि पेपैल में भी जो अकाउंट लिंक्ड है वो मम्मी के नाम पे है, एंड जो हम्म। जीएसटी है वो मेरे नाम पे है। सो पेपैल स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, और फिर मैंने स्केल भी बहुत फास्ट किया। जैसे जैन में माय टोटल रेवेन्यू वाज़ अराउंड 12K डॉलर्स, एंड हम्म। फेब में इट वाज़ अराउंड 15K डॉलर्स, एंड हम्म। मार्च में आई सडनली स्केल्ड इट टू अराउंड 60 या 70,000 डॉलर्स के बीच में समथिंग। So हम्म। PayPal started creating issue, put it all my हम्म। money on hold, account हम्म। limited. Now हम्म। my account has been reviewed PayPal हम्म। से. हम्म। So भाई अभी जैसे PayPal रिलीज करेगा सब मेरे नाम हम्म। पे कर लूंगी वापस से, मतलब अभी जैसे मम्मी के नाम पे चल रहा है, बिकॉज हम्म। वैसे सब मेरे नाम पे वापस से शिफ्ट कर लूंगी। ओके, हाँ ये होता है यार। एंड लाइक वी वर हैविंग अ कॉन्वर्जेशन बिफोर द शो हम्म कि हमेशा स्लो स्केल करो, उससे लॉजिस्टिक्स भी सही रहते हैं, पेमेंट प्रोसेसेस भी सही रहते हैं। बट नाउ एनीवे, इवन इफ इट्स हैपेंड, यू जस्ट गिव देम व्हाट दे नीड, कीप फॉलोइंग अप विद देम, बी पेशेंट। एज लॉन्ग एज यू हैव हम्म नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सो बट या एनीवे, हम्म इट्स गुड दैट यू नो यू वर्किंग ऑन इट। सेल्स आती रहेंगी, एजेंसी वाला काम भी कर रहे हो, यू हैव नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, व्हिच इज अ प्रीटी गुड थिंग एज वेल। सो बी पेशेंट एंड जस्ट गिव देम व्हाट दे नीड, इट्स गोना बी बैक। एवरी ई-कॉम एंटरप्रेन्योर फेसेस दैट। एंड ये एक साइन होता है कि आप स्केल हम्म कर रहे हो। वरना किसी का मतलब मैं एग्जैक्टली। आई एम सॉरी, या आई हैव नेवर मेट एनीवन जो कि अच्छा कर रहे ई-कॉम में और उनका कभी पेपैल बैन नहीं हुआ हो, कभी नहीं मिला हूं मैं किसी से, या बात हुई है। सो प्रीटी गुड, कंटिन्यू रखो यार, यू डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब. You've shared some really good insights. Now before we sign off, is there something that you would like to share with everyone who's watching this or listening to this? Because most people are going to have questions like, okay, आप मुझे क्या कहना चाहोगे, what advice would you like to give to people, what tips would you like to give to people? So yeah, please go ahead. सो फर्स्टली 18% जीएसटी के पीछे यूएसडी वाला एड अकाउंट मत रखो। Hmm. ट्राई, बिकॉज इट इज ऑलवेज बेटर कि आप 18% जीएसटी अपने एड्स पे स्पेंड कर रहे हो, एड अमाउंट पे स्पेंड कर रहे हो, रादर देन द होल अकाउंट इज बिन बैंड इन यूएसडी। सो आई वुड सजेस्ट कि ऑलवेज गो फॉर अ आईएनआर एड अकाउंट, गेट योर बीएम रजिस्टर्ड। बैन्स कम हो जाएंगे, अभी मेरे लिए तो बैन्स आर नलिफाइड कंप्लीटली। तो एक सेकेंड, आपने आगे जब BM वेरीफाई कराया, सो यू जस्ट यूज अ GST सर्टिफिकेट फॉर दैट, राइट? जीएसटी सर्टिफिकेट, एंड हम्म। जैसे जीएसटी मेरे नाम पे था, अभी वो जो हम्म। बीएम है दैट इज मेरे मामा के नाम पे है। मामा का हम्म। फेसबुक अकाउंट है। गॉट इट। जीएसटी जो था वो मेरे नाम पे था, बट उससे कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं, बिकॉज आई वाज स्टार्टिंग में आई वाज कंफ्यूज कि हम्म। मेरा ये नहीं है, बिकॉज मेरा एड अकाउंट तो पहले ही बैन कर दिया था, मम्मी का बैन कर दिया था, पापा का बैन कर दिया था, सबका बैन हम्म। कर दिया था, मामा बचे हम्म। थे मामा का लिया। बट आई वाज कंफ्यूज्ड इन द बिगिनिंग कि मतलब मामा का अकाउंट है, जीएसटी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, तो वेरीफाई होगा नहीं होगा, बट हो गया। सो डॉक्यूमेंट्स बस जीएसटी सर्टिफिकेट, जो मुझे जो मैंने सीए के हेल्प से, हम्म। एक्चुअली मयंक सर के ही साथ में मैंने जीएसटी नाइस। निकवाला, उनसे हेल्प ली जीएसटी सर्टिफिकेट के लिए, उन्होंने हेल्प की जीएसटी सर्टिफिकेट के लिए, एंड वो जीएसटी सर्टिफिकेट सबमिट किया, एंड जो मेरा फ्रंट जो पासबुक का जो फ्रंट पेज हम्म। होता है उसके फोटोज, सो उससे मेरा अप्रूव हो गया था इन 3 days बीएम। गुड, ऑसम। तो चलो ठीक है, पहली चीज़ तो टिप ये हो गई कि बी ओके पेइंग 18% GST टू फेसबुक। वुड यू लाइक टू से एनीथिंग एल्स टू पीपल, एनीथिंग? यस यस। जैसे अभी मेरे लिए
अभी इम्पोर्टेंट अभी तक भी आई एम फॉलोइंग व्हाट इज बीन टॉट इन डीडी. आई हैवंट रीइन्वेंटेड द लूप. आई एम जस्ट Mm-hmm. आई हैव जस्ट स्टिक टू टी-शर्ट्स. आई हैवंट ट्राइड एनीथिंग एल्स. सो मतलब डोंट रीइन्वेंट द लूप. ट्रस्ट द प्रोसेस. Be consistent with the designing. Be consistent with the testing part. Slowly and gradually आपको पता चलेगा कि कौन से डिजाइन वर्क करते हैं. सो उससे क्या होगा कि आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये डिज़ाइन्स ना वर्क नहीं करने वाले. Hmm. ये नीश में ये डिज़ाइन्स वर्क नहीं करेंगे, ऐसे वर्क नहीं करेगा. सो एक एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा कि ऐसे-ऐसे करने से या फिर ये डिज़ाइन को ट्राई कर सकते हैं, पोटेंशियल है इसमें. बिकॉज़ व्हेन यू टेस्ट अ लॉट ना, तो आपको पता चलता है कि रिज़ल्ट्स कैसे डिज़ाइन्स पे आ रहे हैं, कैसी नीश Right. पे आ रहे हैं. कौन-सा ऑडियंस है, ऑडियंस का रिएक्शन क्या है, कौन से फ़ेज़ में कैसा रिएक्शन है, वो सब आपको पता चल जाता है. तो वही टेस्ट करते रहो. धीरे-धीरे आपके डिज़ाइनिंग में जो पैसे जा रहे हैं वो कम हो जाएँगे. बिकॉज़ आपको पता चलेगा कि ये डिज़ाइन्स कर सकते हैं वर्क. सो यू वोंट जस्ट टेक रैंडम डिज़ाइन्स एंड स्टार्ट टेस्टिंग दोज़ डिज़ाइन्स. सो अ, धीरे-धीरे टेस्ट करो एंड यू विल कम टू नो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कि ऐसे डिज़ाइन्स ये नीश में काम कर रहे हैं. Beautiful. That's awesome. Aditi, it's been an absolute pleasure to have you today. Thank you so much for your time. Thank you so much for थैंक sharing यू. your success. Thank you so much for the work that you've done on in your life and the businesses that you're running. I'm super proud, and everyone who's gonna know this is gonna be super duper proud of you. So congratulations, keep going, and wishing you the very best and a lot more success. And thanks so much for being you. Thanks to you too, sir, for giving me this opportunity to share my story. And then because Didi community की वजह से, Didi community has kept me going from their results, from the Hmm. posts, उससे. So it's a pleasure for me to share my story and inspire others. And अगर मेरी वजह से एक या दो भी ऐसे होते हैं ना कि they aren't giving up and they are pushed towards success, so I'll be more than happy to hear from them also. That's beautiful. That's like pretty good. I love the mindset that you have. That's very nice. This is one thing that's common between everyone, yeah. Every successful person that I've met, they're always open to share. They want other people to succeed. They don't want to keep things up to themselves. They're okay sharing their secrets. Mhm. Abundant mindset hota hai unka bahut zyada. So you have all the qualities, Aditi. So congratulations again, and thanks for being here. Now what I'm going to do is below the episode in the description, I'm going to add a link to your, let's say, your Instagram, if in case someone wants to get in touch with you or anything of Mhm. that sort. Is Do you think that's going to be fine? Can I add a link to your Instagram or Facebook? Yes, definitely. Awesome. Cool. Yes. So if anyone wants to get in touch, they can get in touch with you. And that's it. And I'm also going to add links to the things that we've spoken about, the Ecom Freedom Challenge, the Digital Dukandar program, and anything else that we've discussed today, ladies and gentlemen. You would be able to find the links in the description. And Aditi, thank you so much for being a part of today's episode. And everyone, ladies and gentlemen, we're going to catch up Thank with you. you guys in the next one. God bless you. Aditi, thank you so much.